میں نے نہیں کرنی یہ شادی۔ اس نے عین نکاح کے وقت انکار کر دیا۔ کیا بےہودگی ہے، سب مہمان اکٹھے ہوئے ہیں اور تم شادی سے انکار کر رہی ہو۔ شازیہ بیگم نے ایک وسیلی نگاہ اس پہ ڈالی۔ تو کیوں کروں ایک اندھے سے شادی، میری قسمت میں یہی اندھے رہ گئے ہیں۔ وہ بدتمیزی کی ساری حدیں پار کر گئی تھی کہ غصہ سے شازیہ بیگم کا ہاتھ اس پہ اٹھا اور وہ دلہن بنی اپنی ماں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے گنگ رہ گئی۔ خبردار، بالاج کے لیے اندھا کا لفظ بولا تو میں بھول جاؤں گی تم میری بیٹی ہو، شازیہ بیگم نے انتہائی غصیلے انداز میں کہا۔ اس وقت سلطان ہاؤس میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ گھر میں نکاح کا فنکشن تھا اور پریشا نے عین نکاح کے وقت نکاح سے انکار کر دیا تھا۔ سبھی کو اس پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا، لیکن قصور تو اس کا بھی نہیں تھا۔ اسے یہ بات چھپائی گئی کہ اس کے مرحوم تایا کا بیٹا دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ وہ حال ہی میں باہر سے آئی ایک خوبصورت دوشیزہ تھی جس کا رشتہ جھٹ پٹ بالاج سلطان سے ہو گیا۔ تصویر دیکھ کر پری نے بھی اوکے کا سا ڈن دے دیا۔ مکمل ارینج میرج تھی۔ بالاج کے ساتھ سامنا بھی نہیں ہوا تھا اس کا، کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے فارم ہاؤس میں رہتا تھا، اور آج جب اس کا نکاح آیا، نویرا نے یہ راز پری کے کانوں میں ڈال دیا کہ اس کا ہونے والا دولہا اندھا ہے اور یہ بات اس سے چھپائی گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نے نکاح کے وقت شادی سے انکار کر دیا۔ بھری محفل میں بالاج کے لیے اندھے کا لفظ استعمال کیا۔ بالاج سلطان اس وقت باہر مردان خانے میں موجود تھا۔ پریشا کے والد اس کے چچا جان شرمندہ تھے۔ بالاج سلطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اندر جا کے اس لڑکی کے بکیے ادھیڑ کر رکھ دے جس نے بھری محفل میں اس کے اندھے پن کا مذاق بنایا۔ چچا جان، آپ نے پریشا کو بتایا نہیں میری اس بیماری کا؟ وہ اپنے کندھے پہ ان کے ہاتھوں کا لمس پہچانتا تھا۔ بیٹا، وہ اپنی بات مکمل کرتے کہ شازیہ بیگم کی پکار نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ پری نکاح کے لیے تیار ہے۔ پریشا زبیر بنت زبیر سلطان، آپ کا نکاح بالاج سلطان ولد عمیر سلطان سے 1,00,000 سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ سکسک اٹھی۔ شازیہ بیگم نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا تھا کہ اگر اس نے نکاح سے انکار کیا تو پری ان کا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ قبول ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ نکاح کرنا پڑا۔ دوسری طرف نویرا اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ نویرا احمد صاحب کی اکلوتی اور مغرور بیٹی تھی اور بالاج سلطان کے ساتھ اس کی کوئی پرانی ان بن چل رہی تھی جس کا بدلہ اس نے پری کی صورت میں لینا چاہا تھا۔ چچا جان، پری کو مجبور مت کریں نکاح کے لیے، بالاج سلطان نے نکاح کے بول سے پہلے زبیر سلطان سے کہا۔ نہیں بیٹا، اس کی کم عقلی کی وجہ سے میں ہیرا نہیں گنوا سکتا۔ آنے والے وقت میں اسے یہ احساس ضرور ہوگا کہ اس کے گھر والوں کا فیصلہ اس کے حق میں کیسا تھا۔ ان کی بات پہ بالاج نے لب کھینچے اور نکاح قبول کر لیا۔ دوسری طرف پریشا، جو رخصتی کے وقت کسی سے نہ ملی، بس روتے ہوئے منہ بنا کے بالاج سلطان کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس رخصت ہوتے آ گئی۔ ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ سلطان حویلی بہت کم آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بینائی کے بارے میں پری کو معلوم نہ ہو سکا۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی فارم ہاؤس میں انٹر ہوئی۔ سلطان ہاؤس میں جتنی گہما گہمی تھی، یہاں فارم ہاؤس میں اتنا ہی خاموش تھا۔ نہ کوئی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، نہ لائٹس کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی جیسے قبرستان کی خاموشی۔ پری وہیں گاڑی میں بیٹھی اس فارم ہاؤس کا منظر دیکھنے لگی جبکہ بالاج سلطان خوشبوؤں میں بسا اس کے پاس سے نکلتا گاڑی سے اتر چکا تھا۔ پریشا، باہر آ جائیں، اسے بت بنا بیٹھا محسوس کرتے ہوئے وہ بولا۔ پھر یکدم پریشا چونکی۔ اسے کیسے پتا کہ وہ گاڑی سے نہیں اتری؟ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ تبھی ایک ملازم بھاگتا ہوا بالاج سلطان کی طرف بڑھا اور اسے اسٹک تھما دی جس کی مدد سے وہ اکیلا ہی اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ پریشا خود پہ ضبط کرتی اس کے پیچھے ہی وہ بھی اندر بڑھی۔ فارم ہاؤس بہت خوبصورت تھا، سلطان ہاؤس سے بھی زیادہ۔ وہ ایک پل کو مروب سی ہوئی۔ یہاں سے لیفٹ سائڈ پر جائیں، آپ کا روم ہے۔ اچانک سے بالاج کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ پھر سے چونکی۔ میرا روم؟ اتنی دیر میں پہلی بار وہ بولی۔ اس کی آواز سنتا بالاج چونکا تھا۔ اس وقت اس نے بلیک گلاسز پہنے ہوئے تھے جس سے اس کی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں۔ جی، آپ کا روم۔
وہ लबें से दूसरी जानिब बढ़ गया। हम अलग अलग रूम में रहेंगे क्या? वो अचानक इसके सामने आती पूछने लगी तो वो बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे उसकी बात का मतलब समझना चाह रहा हो। मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक अंधे के साथ इसकी बैसाखी बनकर चलना पसंद होगा। आप प्लीज इस तरफ जाएं, रात काफी हो गई है। वो सपाट अंदाज में बोलता सीढ़ियां चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो निकाह के वक्त इनकार कर देते। अब ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? वो एकदम तल्ख हुई कि बलाज के कदम फिर से थमे। कुछ वजूहात की बिना से इनकार न कर सका, जैसे आप न कर सकी। लेकिन मैं आप पे अपना आप ज़बरदस्ती मसलत नहीं करूँगा। मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी यहाँ। मुझे आदत नहीं अकेले रहने की। परी की रोंधी सी आवाज़ सुनाई दी। एक पल को खामोशी सी छा गई। फिर क्या चाहती हैं आप? वो बिलाकर उसके दिमाग तक न पहुंच सका तो उससे पूछ लिया। कुछ नहीं, वो गुस्सा से बोलती अपना लहंगा संभालते वहाँ से लेफ्ट साइड चली गई जहाँ बालाज ने उसे जाने का कहा था। चूड़ियों की खनक और कस्तूरी की खुशबू के एकदम गायब होने पे वो जान गया कि परी जा चुकी है। वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। परी कमरे में आते दरवाजे के साथ लगी फूट फूट के रो दी। क्या पहली रात की दुल्हन का इस्तकबाल ऐसे किया जाता है? वो हिचकियों से बहुत सारा रो उठी थी और कमरे को एक तायराना निगाह से देखा। एक अजीब सा खौफ रगों में उतरा। वो अकेले रहने की आदी न थी। तुर्की में भी उसका पूरा ननिहाल एक साथ रहता था। अब जब वो पाकिस्तान वापस आई थी तो ददियाल में हरा भरा था, लेकिन जिंदगी का दूसरा बाब क्या था उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। एकदम इसका दिल घबराने लगा। इतने बड़े कमरे में अकेलापन काटने को दौड़ रहा था। बालाज भले बिनाई से महरूम है, लेकिन है तो इंसान ही ना। और उसका शोर फिर क्यों अलग रूम? मैं नहीं रह सकती अकेली। वो कमरे से खौफ खाती बाहर निकली और अंदाजे से कॉरिडोर से गुजरती दूसरी तरफ बढ़ गई। कोई एक मुलाजिम भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दुल्हन बनी कयामत ढहा रही थी, लेकिन किसके लिए तैयार हुई थी जो देख ही नहीं सकता था। वो फिर से बदगुमान हुई। बड़े से कमरे के दरवाजे पे रुकते उसने दिल बड़ा करते हुए दरवाजे का लॉक घुमाया तो वो खुलता चला गया। अंदर दाखिल हुई तो उसे लगा कि जन्नत में आ गई हो। हर तरफ खूबसूरती से गुलाब फूलों की लड़ियां लगी हुई थी। हर कोने में जगमगाती रंगीन लाइटें सितारों की माने झिलमिलाती थीं। सुर्ख और सफ़ेद गुलाब की महक कमरे को जन्नत का एहसास दिला रही थी। छत से लटकते फूलों के झुरमुट ने फिजा को और दिलकश बना दिया था। सजे हुए बिस्तर पर फूलों की चादर उसे देखकर एक पलक झपकना भूल गई। वो कदम ब कदम चलती कमरे के बीच आ गई। ऊपर झूलता शानदार फर्नूस उस पर किरणें बखेरने लगा। यूं लगा जैसे जन्नत में आ गई हो, रोशनी के हिसार में उतर आई हो। कि पीछे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास जागा तो लाज शावर लेकर फ्रेश सा उसके सामने खड़ा था। उसके आंखों से चश्मा गायब था। परीक्षा ने गौर किया। उसकी आंखें गहरी सब्ज रंग की थी, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी। बालाज की मर्दाना वजाहत किसी को भी महसूर कर देने वाली थी। बुलंद कामत, कशादा शानें और मजबूत जिबड़े उसके वजूद को रो बख्शने वाले थे। चेहरे की सख्त लकीरें उसकी शख्सियत को मजीद पुरअसर बना रही थी। आंखों की रोशनी न होने के बावजूद उनकी गहरी साख्त और पुरकशिश अंदाज दिल को छू लेने वाले था। उसके लबों पे छाया संजीदा सुकूत और चेहरे पर नरमी का तासुर उसे एक वजीह और बावकार शख्सियत बना रहा था। एक पल को देखते परीक्षा की हार्ट बीट मिस हुई। कुछ चाहिए आपको? अगले पल उसकी आवाज़ पे परीक्षा होश में आई। मुझे अकेले रूम में डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। ईशान वजाहत दी। ओके, यही रह सकती हैं आप। मुझे कोई मसला नहीं। मैंने आपकी आसानी के लिए ये दूसरा रूम सेट करवाया था। मेरी फिक्र ना करें आप। वो एकदम तल्ख हो गई। वो जो पलट रहा था एकदम रुक गया। मैं खुद कर लूँगी, मुझे चेंज करना है। साथ ही वो बात का रुख पलट गई। ड्रेसिंग रूम उस तरफ है। बालाज ने भी बिना बहस के उसे बताते बैठकर रुख किया। वो कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन कमरे में भीनी भीनी खुशबुएं रची बसी थीं। ऊपर से एक निस्वानी वजूद उसके पास था। उसकी महरम बनके बालाज 29 साला खूबरू जवान मर्द था। उसके भी सिर्फ नाजुक को लेके बहुत सारे जज्बात थे, शायद आम मर्दों से हट के कुछ ज़्यादा ही।
आंखों की रोशनी के जाने के बाद वो बिल्कुल गुमसुम सा हो गया था, जैसे जिंदगी से नाता कट गया हो। पर जुबैर सुल्तान ने हमेशा उसे अपने बच्चों की तरह चाहा था और आज अपने जिगर का टुकड़ा भी दे दिया। वो बैकग्राउंड से टेक लगाता आंखें मूंद गया। कुछ ही देर बाद उसे खटपट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो वहीं उसके रूम में है, जबकि परी अपने जेवर उतारती जोर जोर से ड्रेसिंग पे पटक रही थी, जैसे अपना सारा गुस्सा उसी पर उतारना था। और बालाज जैसा बंदा समझ ना सकता, ऐसा तो मुमकिन ही ना था। ऐसे तैयार किया मुझे जैसे इस बंदे ने मेरी तारीफों के पुल बांधने थे। सादा से जोड़े में रुखसत कर देते, क्या फ़र्क पड़ जाना था। कानों से झुमके उतारते हुए वो मुसलसल बड़बड़ाए जा रही थी। बालाज सुल्तान बैकग्राउंड से टेक लगाए सर पीछे किए गिराए हुए नीम व आंखें किए उसकी बड़बड़ाहट भी सुन रहा था। अगले ही पल उसने अपना कामदार दुपट्टा उतार के एक तरफ पटक दिया। बालाज की गर्दन भी उसी पल सीधी हुई थी। एक पल को परी को लगा उसकी निगाहों का इर्तिकाज उसी पे है। उसका दिल जोरों से धड़का, लेकिन अगले ही पल यह एहसास भी शिद्दत से जागा कि वो देख ही नहीं सकता। और फिर रिलैक्स अंदाज में वो अपने बालों से पिंज उतारती अपने घने रेशमी बालों को खोल गई, जो उसकी पुश्त पे फैल गए थे। मेरा ड्रेस कहाँ है? वो अपना लहंगा जरा सा ऊपर करती उसके पास आते हुए पूछ रही थी। अपनी हशर सामानियाँ बखेरते वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। अगर बालाज सुल्तान उसे इस हाल में देख लेता तो शायद ही खुद पे काबू रख पाता। कबर्ड में सब मौजूद है, बिल्कुल सपाट अंदाज में जवाब दिया। परी ने गहरा सांस भरते हुए कबर्ड खोली और अपना एक ड्रेस निकाला, जो रात के सोने के लिए कंफर्टेबल था। साथ ही उसकी निगाह उन नाइटीज पर चली गई, जो भी इंतहा बोल्ड थी। कबर्ड की ओर से जरा सा पीछे हो गए। एक झलक उसने बालाज सुल्तान की जानिब देखा, जो अब भी आंखें नीचे किए बैठा हुआ था, और फिर उन नाइटीज को उलट पुलट कर देखती। वो कानों की लू तक सुर्ख हुई थी। तो वह किस कदर वाहियात नाइटीज हैं, पर क्या फ़ायदा इनका, महाराज साहब तो देख ही नहीं सकते। फिर ली क्यों? वो पूरी तरह तपी थी और जोर से कपड़ बंद करते वो ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ी। यहीं चेंज कर लें। अचानक से अपने अकब से आवाज़ सुनती परीक्षा के कदम जमीन पे पेवस्त हुए। रुख फेर के उस शख्स को देखा, जिसकी नज़रों का फोकस अपने हाथों पे था। चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। क्यों यहाँ क्यों चेंज करूँ? वहाँ जाके करूँगी। वो भी तल्ख अंदाज में जवाब देती। बालाज की बहुत अलग सी लगी थी। जहाँ भी कर ले मर्जी आपकी, मैंने कौन सा आपको देखना है। आपकी बार नज़रों का फोकस उस पे था और परी को फिर से लगा जैसे वो उसे देख रहा हो। उसकी नज़रों की बिनाई नहीं थी, लेकिन उसकी गहरी सब्ज आंखें बोलती थीं। उसकी नज़रों का फोकस खुद पे महसूस करती। परी के जिस्म में करंट सा दौड़ा था। बिना कोई जवाब दिए वो ड्रेसिंग रूम में चली गई, अलबत्ता दरवाज़ा को लॉक न लगाया। कुछ देर बाद वो रूम में वापस आई तो कमरे में घुप अंधेरा था। या अल्लाह, ये जीते जी किस कब्र में डाल दिया मुझे। वो अंदाजे से बिस्तर के करीब जाते अंधेरे में ही अपने शोर जैसी नायाब हस्ती को घूरने लगी। लाइट ऑन करें प्लीज़, वो चिढ़ी थी। क्या हुआ? वो साइड लैंप ऑन करता उसकी जानिब मुड़ा। मुझे अंधेरे से खौफ आता है। लाइट ऑन ही रहने दें। और आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ऑन हो या ऑफ? वो तेज़ी से बोलते अपना दुपट्टा एक तरफ रखते उसके बराबर में लेटते उसे इतला देने वाले अंदाज में बोली, जबकि एक पल को उसे लगा वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। लेकिन मुकाबिल चेहरे पे कोई भी बुरा तासुर ढूंढने से भी ना मिला था। आप यहाँ मेरे साथ सोएंगी? वो इसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे और सवाल करने लगा। तो कहीं और जाके सोऊं? बता दे मुझे, मेरा क्या मकाम है? एक तो इस निकाह के लिए थप्पड़ भी खा लिया, ऊपर से अकेले यहाँ आपके साथ भेज दिया। जानते हैं मैं अकेले नहीं रह सकती, डर लगता है मुझे। कभी अकेली नहीं सोई और आप मुझे कह रहे हैं यहाँ से चली जाऊँ? और वो नाम आंखों से बोली। बालाज सुल्तान तो सवाल करके पछताया। इतना लंबा चौड़ा जवाब मिलेगा उसे अंदाज़ा नहीं था। रिलैक्स, सो जाएं, मैं यहीं। वो वापस तकिए पे सर रखता
अपनी आंखें मूंदता, बाजू आंखों पे धरता सो गया। बहुत मेहरबानी आपकी, आपका एहसान है मुझ पे। उसकी वो ज़बान जो थोड़ी देर पहले वो गिरवी रख के आई हुई थी, उसे वापस मिल गई थी। सभी ने उसे डरा के रखा हुआ था कि बालाज सुल्तान का गुस्सा बहुत ज़्यादा सख्त है, इसलिए उसके सामने ज़बान खोलने से पहले एक बार लाजमी सोचें। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था। वो तो बात कर रही थी, पुरसुकून अंदाज में जवाब आ रहा था। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए प्रीशा वापस अपनी असली रूप में और असली टोन में आ गई। तकिए पे सर रखते रुख फेर कर उस महान हस्ती को देखा जो आज उसके शोहर के रुतबे पे फायज हुआ था। तभी उसने भी परी की जानिब करवट ली तो परी का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा परी के कंधे के बिल्कुल ही पास था। परी की तो सांस ही रुक गई, जबकि बहलाज की आंखें बंद थी। वो यकटक उसे देख चली। खूबसूरती जैसे उस शख्स पे ख़त्म हुई थी। बेइंतहा पुरकशिश मर्द था। काश इसकी बिनाई भी होती तो कितना मुकम्मल होता। मेरी पूरी ज़िंदगी इससे ज़्यादा खूबसूरत मर्द मैंने नहीं देखा। वो भी उसकी जानिब करवट लिए उसके चेहरे पर कुछ फासले पर सर रखे उसे देखते देखते आंखें मूंद गई और कब गहरी नींद की वादियों में चली गई उसे पता न चला। धीरे से मुकाबिल की आंखें खुली थी। प्रीशा की सांसों की गरमाइश को वो अपने चेहरे पे महसूस कर सकता था। बेख्तियार उस शख्स के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। बालाज सुल्तान जिसका मुस्कान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक न था, आज वो मुस्कुराया भी तो एक छोटी सी गुड़िया की खट्टी मीठी बातें सुनकर। और परी जो उसके हुस्न पे फिदा थी, अगर उसे मुस्कुराता देख लेती तो मुकम्मल ही दिल हार जाती। हर वक्त का रोना सिसकना अच्छा नहीं होता, समझाओ अपनी बेटी को। अल्ताफ साहब गुस्सा से नवेरा को देखते हुर्राए। मम्मा, मुझे बालाज चाहिए, वो रोते हुए बोली। देखो नवेरा, जब सब ने तुम्हारा रिश्ता उससे तय करना चाहा, तुमने इनकार कर दिया कि तुम्हें असद पसंद है। बालाज को छोड़ के तुमने असद से मंगनी कर ली। अब जब असद बाहर मुल्क जाके सेट हुआ, वहाँ वो किसी और से शादी कर चुका है, तो तुम बालाज की तरफ वापस मुड़ना चाह रही हो तो कर देना मेरी बालाज से शादी। जब वापस पलटी तब कौन सा उसका रिश्ता तय हुआ था? वो बात काटते बोली। हाँ, तब भी तुम्हें ही एतराज़ था कि वो अंधा है। मुझे अंधे से शादी नहीं करनी, तो क्या करते? अब वो तुम्हारा इंतज़ार करने से तो रहा। परी ने भी तो ऐन निकाह के वक्त उससे शादी से इनकार कर दिया, लेकिन उसे तो सब ने ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए बालाज के साथ निकाह करके रुखसत कर दिया गया। आप भी मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते थे, मुझे नहीं समझा सकते थे कैसे माँ बाप हैं। लो, ये सुनना बाकी रह गया था। सादिया तुम्हारी बेटी हर दर्जे खुद सर हो गई है। बेहतर होगा इसको लगाम डालो। अगर इसने कोई भी ऐसी वैसी उल्टी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इसको समझा दें, अपने दिमाग से बालाज के नाम का भूत उतार दे। अब वो किसी और का हो गया है। अल्ताफ साहब अपनी बात करते हुए वहाँ से बाहर निकल गए तो नवेरा अपनी माँ की जानिब मुड़ी। नहीं भुला सकती मैं उसे। मुझे लगा वो अब पहले जैसा नहीं रहा, पर वो आज भी वैसा ही है, बेहद खूबरू। मुझे वो चाहिए मम्मा, मैं कर लूँगी हैंडल उसके अंधेपन को, पर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वह मेरे अलावा किसी और से ताल्लुक़ जोड़े। अच्छा, बालाज के लिए तुम ऐसी फीलिंग्स रख रही हो, तो असद के बारे में क्या ख्याल है? जो था ही तुम्हारी पसंद, उसने तो बाहर जाकर शादी भी कर ली और सुना है बहुत जल्द उसके यहाँ खुशखबरी भी आने वाली है। वहाँ तुम्हारी ये फीलिंग्स नहीं जागी? सादिया बेगम ने अपनी बेटी पर खूब तंज बरसाया, क्योंकि उसकी खुदसरी पूरे ख़ानदान में मशहूर थी और उस वक्त अच्छा खासा उसकी बेटी ने उसका सर सबके सामने झुकाया था बालाज के साथ निकाह करने से इनकार करने पर। मैं नहीं जानती मम्मा, लेकिन यही सच है। असद के लिए मुझे ये फीलिंग महसूस नहीं हुई जो बालाज के लिए हो रही है। उसका तो मतलब यही है ना कि मैं बालाज से सच्चा प्यार करती हूँ, और उसका एहसास मुझे अब हो रहा है। प्लीज़ आप मेरी मदद करें। और क्या? सादिया बेगम ने काट अंदाज में उसकी जानिब देखते हुए पूछा। क्या कहना चाहती हो तुम? अभी कल ही तो उन दोनों की शादी हुई है और आज तुम ये राग अलाप रही हो।
मैं तुम्हें साफ कह रही हूँ नवेरा, जो तुम्हारे पापा कह गए हैं उसको अपने पल्ले बांध लो। अब मजीद हम रुसवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे और खुद को कंट्रोल करो। वो गुस्से से उसे समझाती उसका हाथ पर झिटकती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि नवेरा अपने आंसू बहाती शदीद इज़्तिराब का शिकार हुई। सुबह बल्लाज की आंख खुली तो एक पल को वो सिटक गया, जैसे वो भूल गया हो कि कल उसकी शादी हुई थी। दूसरी तरफ परी उसके करीब उसके साथ चिपकी हुई थी, उसे अपने निस्वानी हुस्न से रोशनास करवाती। बुरी तरह दिमाग का फ्यूज हिला गई। बेख्तियार उसकी जानेब मुड़ के उसे उससे दूर करना चाहा, लेकिन मजीद उसके साथ चिपक गई। बालाज की तो कई हार्ट बीट मिस हुई। वो लड़की पूरी आफत थी। उसकी मदम सांसों का अरताश उसके खूबसूरत नशे फराज को बारता, तो वो उसके सीने से टच होती तो बालाज का दिल मजीद धड़क उठता। वो अगर देख नहीं पा रहा था तो क्या महसूस तो कर रहा था। वो उसकी जानिब मुड़ता, उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखता, उसे ऊपर की तरफ हल्का सा खींच गया, जिससे वो मुकम्मल उसकी आगोश में आ गई। उसके सीने में मुंह छुपाए वो अभी भी गहरी नींद में थी, जबकि बालाज आंखें बेचे अपनी बीवी की दिलकशी को महसूस करता अपने जज्बात को भड़का रहा था। बख्तियार ही आंखें मीचे उसकी कमर के गिर्द अपने दोनों हाथ रखे उसकी नाजुक कमर को अपनी मुट्ठियों में भरा, तो एक पल को बालाज को लगा न जाने क्या खजाना हाथ लग गया। अपना निचला लब दांतों तले दबाया और उसकी नाजगी को अपने सीने में महसूस करता वह मदोशी की कैफियत में जा रहा था कि अचानक ही परी कसमसाई उसके सीने पे लिपटते। उसका सांस जरा रुक रहा था। वो कसमसा के आंखें वार करती अपने नज़दीक सोए बालाज को देखने लगी। पल भर को उसे समझ न आई ये शख्स कौन है। वो भूल ही गई कि उसकी शादी हुई है। आप कौन है? उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरती आंखें नीमवा करती पूछती उसकी आंखों को खुलवा गई। परी खुद तो जाग गई थी, लेकिन दिमाग अभी भी सुन पड़ा था। उसे ये तक एहसास न था कि वह मुखालिफ शख्स को अपना आप अच्छे से महसूस करवा चुकी है। बालाज की रोशन आंखें देखती वो माथे पर बल डाल गई, जबकि एक पल को उसे यूं लगा कि उसकी आंखें परी के पूरे जिस्म का एक्सरे कर रही हों। वो झट से पीछे हटती, उठ बैठी, बुरी तरह शर्मिंदा होते। वो पास पड़ा दुपट्टा ओढ़ के खड़ी हुई। बालाज भी अपने बालों में हाथ फेरता, अपने मटते जज्बात को कंट्रोल करने की सही करता उठा था। नींद में कब वो दोनों एक दूसरे के करीब हुए परी को तो याद ही नहीं आ रहा था। वो नज़रें चुराते बाथरूम में घुसी, जबकि बालाज दिल पे हाथ रखे धीमा सा मुस्कुरा दिया। आज शहर के सबसे बड़े मार्की में बालाज और परी का रिसेप्शन था। दोनों की जोड़ी की खूब तारीफ हुई। नवेरा तो सोगवार सी वहाँ स्टेज से आई और उन दोनों को एक साथ देखकर पूरे तन मन से जल उठी थी। परी का खिलता खिलता रूप सारी कहानी कह रहा था। वो एक हो गए हैं। कल की बनिस्बत आज परी के चेहरे पे बेजारी नहीं थी। वो जैसे बालाज के साथ खुश थी। खुश क्यों न होती, आखिर इतना खूबरू मजबूत मर्द मिला था। उसे देख नहीं सकता था, लेकिन बाकी सब कुछ तो कर ही सकता था। नवेरा दिल ही दिल में फजूल बातें सोचती परी को देखे जा रही थी। बहुत खुश हो लगता है, रात को खूब डोज मिला है। अंधे से बालाज स्टिक के सहारे उठता नीचे उतर गया। जब नवेरा ने तंज के तीर चलाए, परी के चेहरा से एकदम संजीदा हुआ। नवेरा, आप भी अपनी ज़बान से थोड़ा मीठा बोल लिया करें, बल नहीं आएगा आपको। वो दांत पीसते बोली, अब क्या गलत कहा मैंने? वैसे मुँह ना दिखाई में क्या मिला? अंधे ने मुँह दिखाई कुछ दिया ही नहीं होगा। डेफिनेटली जब मुँह देख सकता तो मुँह दिखाई देता ना। नवेरा एक और तंज परी के दिल पर खुबा गई। वो बस नवेरा को देखती रह गई। उसके दिल, जबान और आंखों में किस कदर जहर भरा बात मुँह दिखाई नहीं दी, क्योंकि मुँह नहीं देख सके, लेकिन मुझे सारी रात उन्होंने सोने नहीं दिया। अपनी बेदर्द चित्तों से निढाल करके रख दिया। सुबह भी बाथरूम रोमांस किया। मुझे लगा ही नहीं कि वो देख नहीं सकते, जबकि उनका बेबाक अंदाज तो मुझे बस शर्माने पे ही मजबूर करता रहा। परी की बेधड़क अंदाज में कई बातें सुनते नवेरा के दिल से बिजलियां गिरी। वो जल भून के उसके पास से उठ गई।
आई बड़ी मुझे बातें सुनाने वाली। परी ने मुंह बनाते रुख फेर के देखा। वो अपने बहुत पास बालाज को देखकर उसके दिल की धड़कन थम सी गई। उन्होंने कुछ सुना तो नहीं? नहीं सुना होगा, चेहरे से नहीं लग रहा। वो खुद को तसल्लियां दे रही थी, जबकि क्या वो ये नहीं जानती थी कि उसका शोर अंधा है, बहरा नहीं। आज सुल्तान हाउस में खूब रौनक लगी थी। परी पग फेरे की रस्म के लिए आई थी। अब हफ्ता हो चला था वो यहीं थी। इसका यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, जबकि बालाज ने भी एक बार भी उसे वापस आने को नहीं बोला था। ऐसे में आज जुबैर साहब ने उसे सुल्तान हाउस दावत पे बुलाया था। वो परी को उसके साथ भेजने का पूरा इरादा रखते थे। जो भी था, अगर बालाज बोलता नहीं था तो उसका मतलब ये नहीं था कि उसके ज़ब्त का इम्तहान लिया जाए। काफ़ी देर वह दोनों अकेले स्टडी रूम में बैठे रहे। खाने में भी अभी काफ़ी वक्त था। परी नज़र बचाती बाप के स्टडी रूम से निकलते ही खुद स्टडी रूम में घुसी। सामने ही बालाज बैठा था, जो उसके कदमों की चाप से ही उसे पहचान गया था। मिस्टर सुल्तानों के आखिरी चश्म चिराग, मेरी बात सुने। मुझे आपके फार्म हाउस नहीं जाना, उस सुनसान जगह जहाँ कोई बात करने वाला ही नहीं। प्लीज़ आप भी इधर शिफ्ट हो जाएं, वरना मुझे यहीं रहने दें। वो उसके पास आती उसका हाथ थामे लजाजत से बोलती उसको। वे स्माइल कर गई। हम आज वापस जाएंगे परी, अब वही आपका घर है। बालाज की इंतहाई संजीदा आवाज़ फिर वो लब भेज गई। बंदा बीवी की भी सुन लेता है कभी, वो कपकी से बोली, जबकि बालाज खड़ा होता उसके करीब आया। जिस दिन बीवी बनेगी उस दिन सुन भी लूँगा, धीरे से उसके कान में कहता। वो स्टडी रूम से बाहर निकल गया। जबकि उसकी बात पे परी का दिल पूरी तरह धड़का था। और फिर वही हुआ। जुबैर साहब ने परी को रात के खाने के बाद वापस भिजवा दिया। वो इंतहाई ख़राब मूड के साथ अंदर दाखिल हुई। सब कुछ उतार उतार कर फेंक रही थी। पहले हील उतारे, दोनों ही उछाल के दूर फेंके, फिर शाल उतार के लटकी, फिर दुपट्टा अपनी तरतीब और सलीके से बंधे बालों को झटके से खोलते वो बिस्तर पे गुस्से से बैठती। अब बालाज को घूर रही थी, जो बहुत धीरे धीरे कदम उठाता अंदर पहुंचा था। अपना चश्मा उतार के एक तरफ रखता वो अब घड़ी उतार के दराज पे रख दी। आप बहुत बुरे हैं मिस्टर बालाज सुल्तान। वो उसकी तरफ मुड़ के गुस्से से बोली। आहिस्ता आवाज़ में बात करें, बहरा नहीं हूँ। वही नॉर्मल अंदाज, हाँ जानती हूँ बहरे नहीं हैं आप, अंधे हैं। वो गुस्से से खड़े होके बोलती, कुछ ज़्यादा ही हाजी तरीका ही अपना गई थी कि एक पल को बालाज के शर्ट के बटन खोलते हाथ सुन पड़े। परी को यकदम अपने सख्त अल्फाज पे शौक लगा। वो ऐसी तो ना थी, फिर कैसे उसके मुंह पे ये फजूल बकवास निकल गई। जानता हूँ, अंधा हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो अब की बार तल्ख होते झटके से अपनी शर्ट उतार के दूर चेयर पे फेंक गया और बाथरूम में बंद हो गया। और ओ मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया तुमने परी। बालाज का दिल दुखा। अगर वो देख नहीं सकते तो इसमें अल्लाह की मर्जी है। किसी को उसकी कमी की वजह से यूं बातें सुनाना सख्त गुनाह है। परी की आंखें भीगने लगीं। वो बहुत देर उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन बालाज बाहर ही नहीं आ रहा था। जिस दिन बीवी बनोगी उस दिन सारी बातें सुनूंगा। एक अजीब सी बेसुकूनी ने उसका अहाता किया था। अभी वो सोच रही थी कि बालाज बाहर निकला। उसने बात में पहना था उसकी दिलकश मर्दाना बॉडी, चौड़े कंधे और उभरा सॉल्ट सीना। जो बात रूप से भी वाज़ेह हो रहा था, बिलाशी बाबा मजबूत जिसामत का हामिल मर्द था। कबर्ड से अपना ड्रेस निकाल रहा था और तेज़ कदमों से वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। एक पल को परी को लगा जैसे वो देख सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं देख सकता। परी इतनी तेज़ी से कैसे ये शख्स चल सकता है। पहली बार परी को इस पे शक गुजरा। वो बाहर आया तो नाइट ड्रेस में था। बिना परी को कोई तासुर दिए बिस्तर की जानिब बढ़ा और लाइट्स ऑफ कर दी। परी भी उसके पास आके बैठी, जो सोने के लिए लेट चुका था। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से गलती से। वो उसके बहुत पास होके अपनी बात की माफ़ी मांग रही थी, जबकि बालाज बिल्कुल खामोश था। बालाज वो उसके बाजू पे हाथ रखे उसे हिलाने लगी। परीशा सो जाएं, रात काफ़ी हो गई है। बिना आंखें खोले जवाब दिया। नहीं, पहले माफ़ करें मुझसे गलती हो गई। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। सच ही तो है, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है। ये कमी है मुझ में। और मैंने चचा जान को मना भी किया था कि वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें मुझे जैसे अंधे के साथ निकाह करवा के।
लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और आपकी ज़िंदगी बर्बाद। नहीं बालाज, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। मुझसे गलती से मुँह से निकला है। मेरा इरादा नहीं था आपका दिल दुखाने का। प्लीज़ माफ़ कर दें, प्लीज़ सो जाएं। परी, रात बहुत हो गई है। वो रुख फेर के लेटा तो परी उसके बहुत करीब हुई। जब तक माफ़ नहीं करते मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके मनमोहने अंदाज से वो मुस्कुरा दिया। अच्छा कर दिया है, सो जाएं अब। उसकी बात पे परी के चेहरे का मुस्कान ने छुआ। आज छोड़ो मुझे, मेरा हाथ टूट जाएगा। छोड़ना ही तो है। उस शख्स ने बेदर्दी से उस सामने रस्सियों से जकड़े शख्स की कलाई मरोड़ के तड़क के कुछ टूटने की आवाज़ आई। पूरा तहखाना चीखों से गूंज उठा और यही चीखें तो उस शख्स को सुकून पहुंचा रही थी। बताओ अपने दूसरे साथी का पता, वरना ये बाजू भी तोड़ दूंगा। अकबर शेख जख्मों से चूर वो शख्स नीम बेहोशी में बोलता सामने खड़े शख्स के दिलो दिमाग को जगड़ता चला गया। परी बालाज से इजाज़त लेती कुछ दिन सुल्तान हाउस रह आई थी। आज उसकी वापसी थी, वो भी सरप्राइज़ वापसी। बालाज के लिए उसके दिल में शादिया बेगम ने मोहब्बत को कोंपल बना दिया था। बालाज की सारी हकीकत जान के वो अपना दिल उसके लिए धड़कता महसूस करने लगी। एक कार एक्सीडेंट में उसके वालिदैन की डेथ हुई थी। वो उन्हीं को बचाते उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। उसकी आंखों में कांच चुभा था, जिसकी वजह से वो देखने की सलाहियत से महरूम हो गया था। और इस वाक़ये को 16 साल गुजर गए थे। बालाज का इलाज होता रहा, 2 से 3 सर्जरीज भी हुई, लेकिन अभी तक कोई भी ख़ातिरख़्वाह रिजल्ट सामने नहीं आया था। इन बातों से परी के दिल में बालाज के लिए हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा बेदार हुआ था। वो शख्स बहुत अकेला है परी। मुझे मेरे सब बच्चों से ज़्यादा अजीज़ है वो। बहुत सब्र वाला है, 4 साल से बिखरा हुआ है, उसे समेट लो परी। मेरी बच्ची। उसकी सगी माँ उससे ज़्यादा बालाज को फेवर कर रही थी। इस बात ने भी उसे अच्छा खासा सोचने पे मजबूर कर दिया। परी आपको समेट लेगी बालाज। वो दिल ही दिल में बालाज को मुखातिब कर दे फार्म हाउस में वापस लौट आई थी। मुलाजमा से पता चला था कि बालाज कहीं ज़रूरी काम से गया है। जब से बालाज परी को ब्याह के फार्म हाउस लाया था, तब से एक मुलाजमा नूरी को रखा था ताकि परी को अकेलापन महसूस न हो। परी बालाज की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते आज अच्छे से तैयार हुई और बालाज का वेट करने लगी। आईने में खुद को देखा तो दिल धड़क उठा, ये जानते हुए कि उसे देख नहीं सकता। फिर भी वो बहुत दिल से तैयार हुई और रात काफ़ी देर उसका जाग के इंतज़ार करती रही, लेकिन वो ना आया तो थक हार के गुस्से से अपना ड्रेस चेंज करती एक नाइटी निकाल कर पहन गई। नाइटी पहनते ही उसे शर्म तो बहुत आई, लेकिन एक तरह से दिल मुतमिन था कि कौन सा बालाज ने उसे इस हाल में देखना है। क्यों ना अपने शौक पूरा कर ले। ब्लैक कलर की नाइटी में जो घुटनों तक आती थी, उसके ऊपर सिल्क का जालीदार अपर था। वो उसमें एक अलसिपरा लग रही थी। बिस्तर पे लेटे लेटे बालाज की जगह बिस्तर है, हाथ फेरती वो उसके ख्यालों में खो गई, नींद में डूबती चली गई। रात के 2 बज रहे थे जब बालाज घर में दाखिल हुआ। उसके कपड़े खून आलूद थे, चेहरे पे बेइंतहाई किस्म का गुस्सा और दहशत थी, जैसे रास्ते में आई हर चीज़ को रौंद डालेगा। वो लब भींचे तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वो नहीं जानता था कि परी वापस आ चुकी है या नहीं, लेकिन वो फिर भी इस हालत में रूम में नहीं जा सकता था। अपने स्पेशल रूम में जाते उसने अपनी शर्ट उतार के ज़मीन बोस की, अपने चेहरे और चेस्ट को देखा जहाँ चाकू जख्म का निशान था। अपने जख्मों को अच्छे साफ करता और उन पे एंटीसेप्टिक लगाता शावर लेने लगा। शावर लेता वो टॉवल बांधे बाहर निकला। यहाँ इसका कोई ड्रेस नहीं था, इसलिए वो रूम को लॉक लगाता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, कमरे में फेरी लाइट्स ऑन थी। वो एक पल को चौंक गया। नज़रें भटक के बिस्तर पे नौवजिद उस अलसिपरा पे जा ठहरी जो ब्लैक नाइटी में अपना हशर सामानिया बर्पा किए हुए पूरे कमरे का माहौल ही बदल के रखे चुकी थी। बेख्तियार बालाज का हाथ अपने बराना सीने पे दिल के मकाम पे जा ठहरा, जो बहुत ही सुस्त रवि से हरकत करने लगा था। धीरे धीरे कदम उठाता वो बेड के करीब आता, खड़ा होता, बहुत गहरी निगाहों से गहरी नींद सोई परी का सर से पैर तक भरपूर जायजा लेने लगा। उसकी सुडौल टांगों से नज़रें भटक के ऊपर आती बालाज के दिल के अंदर जज्बात का ना ख़त्म होने वाला तूफान बर्पा कर गई थी।
तभी परी ने करवट बदली थी। अब मुकम्मल मंजर वाज़ेह हो रहा था तो बलाज को खुद पे काबू रखना मुश्किल तरीन अमर लगा। घुटनों के बल बिस्तर पे उसके करीब आता, वो मखमूर निगाहों से फिर से उसे मुकम्मल निहारने लगा। माशाअल्लाह, इतनी खूबसूरती मुकम्मल एक ही अलसुबरा में हो सकती है। अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से औरत की तख्लीक की है, और मेरी औरत का तो कोई जोड़ ही नहीं। वो ज़रा सा उसके आगे झुकता, उसके माथे पे अपने तशना लब रखता, आंखें मूंद गया था। ठंडे लबों का लम्स पाते एक पल को परी के जिस्म ने झुरझुरी ली, लेकिन फिर से नींद में खो गई। बलाज की यहाँ बस कहाँ हुई थी, अब तो वह बहकता जा रहा था। कुछ पल पहले जहाँ उसका दिमाग गर्म था, अब बिल्कुल भी सख्ती का शुबा तक न था। उस कमसिन वजूद ने उसको मुकम्मल अपने असार में कैद कर लिया था। उसके गालों से मोहब्बत भरा लम्स छोड़ता, आहने हाथों से उसके जिस्म को महसूस करता। गहरा सांस भर गया था। यकदम उसके ऊपर साया फगन होते बिना उस पे वजन डालता, वो जिस्म के साथ मुस्करता बहकता जा रहा था। अचानक ही तेज खुशबू ने परी की आवाज़ों को जकड़ा था। वो धीरे से अपनी आंखें वाक करती खुद पे साया फगन हुए निगाहों से उसे देखे जा रहा था। उसके देखने एक पल को परी का दिल बुरी तरह सिकुड़ा, सांसें गहरी हुई और दिल की रफ्तार बढ़ी थी। उसके लबों को फोकस किए उसे बिना पलक झपकते देखते जा रहा था। उसका भरना चट्टानी सीना देखते वो लरज़ उठी थी। उसके चौड़े वजूद में परी बिल्कुल चुप सी गई थी। सो ब्यूटीफुल, उसकी गर्दन पे लब रखता गहरा सांस भरते बोला। उसे तछने लब उसके गर्दन से जोड़े और उसको अपने होंठों में दबा गया। परी एकदम बुरी तरह झुरझुरी लेती फेंक हुई। क्या हुआ बीवी, आप तो बहुत फेंक हो रही हैं। ये सारी तैयारी तो मेरे लिए ही है ना। वह मैंने से बोलता, उसके लबों को होंठों से मिस करता। प्लीज़ पीछे हटें, कुछ भी आपके लिए नहीं है। वो अगले ही पल उसे पीछे हटाती उठ कर दूर जा खड़ी हुई। बलाज ने खुद ही गिरफ्त हल्की कर दी थी, जो वो फौरन उसकी गिरफ्त से निकल गई। अपनी नाइटी दुरुस्त करती वो लाइट ऑन करने लगी। मत ऑन करना, वो एकदम से टोक गया। वो सहम के वहीं थम गई। बलाज नहीं चाहता था कि वो उसके जिस्म पे लगे जख्मों के निशान देखती। आपने शर्ट नहीं पहनी, आप परी हकलाई, जबकि वो खामोशी से उठता, कबर्ड से अपना ड्रेस निकालता, गुस्सा से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। यही चेंज कर लें। बेख्तियार न जाने कैसे परी के लबों से फिसला। वो थमा था। मैं अंधा हूँ, आप नहीं, वो सख्त लहजे में बोलता। ड्रेसिंग रूम में दरवाज़ा धाड़ से बंद करते उसे डरा गया। लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये देख सकते हैं। अचानक से परी के दिमाग की बत्ती जली। उसे एक पल को यही लगा था कि बलाज उसे देख रहा है। वो ना चाहते हुए भी फेंक हो गई, जबकि हकीकतन वो दिल से राजी थी। वो गुस्सा से बाहर आता, उसे नज़रअंदाज करता, सीधा बिस्तर की जानिब बढ़ा। वो वहीं खड़ी उसे देखती रह गई। कुछ तो मिसिंग था, लेकिन क्या। वो धीरे धीरे चलते उसके पास आई। दराज पे पड़ा उसका मोबाइल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि एकदम बलाज ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखे उसे कह रहा, बाहर नज़रों से घूरा। अपनी जगह पे जाकर चुप करके सो जाएं, वरना मेरे अंदर का शैतान जागा तो रात भर आपकी सिसकियाँ ही गूंजेंगी और फिर हर रात नींद के लिए तरसेंगी। एक एक लफ्ज़ पे जोर दे के कहता, वो उसकी जानिब बिना पलक झपकते देखते उसे बुरी तरह डरा गया। बलाज, वो डर के उसे पुकार उठी, प्लीज़ परी सो जाएं। वो अपनी आंखों पर बाजू रख गया कि उसी पल परीशा ने लाइट्स ऑन कर दी। वो लब भैंच के रह गया, अपनी सख्त नज़रें उस पर लगाई। रोशनी में उसके जिस्म की रहनाइयों को देखता, वो फिर से अपने दिल में जज्बात को बढ़ता महसूस कर रहा था। क्या चाहती हैं? वो उसे खामोशी से उसको देखता उठ बैठा। आप देख सकते हैं, फरूंदी आवाज़ में बोली। इस एक पल बलाज के तने आसाब ढीले पड़े थे। इस बात की तरफ तो उसका ध्यान ही ना गया। वो तो बार बार उसके हुस्न की रनाइयों में उलझ रहा था। गहरी सांस भरते वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दोनों ही उस वक्त काले लिबास में थे। बलाज ब्लैक ट्राउज़र और स्लीवलेस हुडी में था, जबकि वो ब्लैक नाइटी में। परी की आंखें उसकी गहरी सब्ज आंखों में गड़ी थी। अगले ही लम्हे वो उसकी कमर में हाथ डाले उसे
अपने सीने में भेज गया और उसके कान के पास "यू नो वेरी वेल बीवी" साथ ही उसके कान की लो को काटा। उसके जवाब पे परीक्षा के रोंगटे खड़े हुए। 1 हफ्ते पहले का वाकया याद आया, जब वो यही समझती थी कि बालाज घर नहीं और रूम के अंदर ही चेंज कर रही थी। अचानक बालाज बाथरूम का दरवाज़ा खोलता कमरे में चला आया। तब वो बहुत बुरी तरह अपसेट हुई थी। वो रूम में था और उसे पता ही ना था। इस पल एक लम्हे को बालाज रुका था, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया था। तब परीक्षा के होश व हवास गुम हुए थे। खुद को देखते पूरी तरह लरजने लगी। फिर ये सोच आई कि बालाज तो देख ही नहीं सकता। उसे हौसला हुआ, पर आज वो जिस तरह सब राजों से पर्दे उठा रहा था, उस राज ने परीक्षा की ज़बान को गूंग कर दिया था और उसकी कमर में हाथ डाले उसे ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठाया। वो जैसे कांच की गुड़िया बनी उसके सीने में समाई हुई एक उसकी आंखों को देखे जा रही थी। बालाज ने उसके चेहरे पे फूंक मारी तो वह लरजती उससे बाजू से थाम गई। बेअख्तियार उसकी निगाह बालाज के फूले मसल पे जा ठहरी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। छोड़े मुझे, आपने मुझे चीट किया। वो दुखी होती उसके सीने पर निकल जड़ गई। उसके नाजुक हाथों की मार बालाज को फूलों की तरह महसूस हो रही थी। वो मुस्कुरा रहा था और उसका मुस्कुराना ही परीक्षा को सख्त गुस्सा दिला रहा था। किस बात का गुस्सा है बीवी के मैं देख सकता हूँ, या आपको सर से पाँव तक देख चुका हूँ। वो बेबाक अंदाज में बोलता उसे मजीद तंग कर रहा था और वहाँ से अंदाज उसके बाल नोचने लगी। ओए क्या कर रही हो, मेरे बाल छोड़ो। वो एकदम घबराया। आगे वो उसकी आंखों को नोचने लगी कि बालाज ने उसकी दोनों कलाइयाँ एक हाथ से थामे पीछे कमर पे लगा दी। यार कुछ कहने का मौका तो दो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आज से आपने क्यों झूठ बोला कि आप देख नहीं सकते परी? उसकी एक वजह, इसलिए अब की बार वो संजीदा हुआ तो वो उसे देखे चली गई। बदला लेना था अपने माँ बाप की मौत का, जो कोई गैर नहीं अपने ही थे। और फिर वह उसे सारी सच्चाई बताता चला गया। उसके दोनों मामों ने जायदाद की खातिर अच्छा खासा बहन के साथ बोझ पाल रहा था और एक दिन दावत के बहाने अपने घर बुलाया। वहाँ मम्मा से जायदाद के पेपर्स पे साइन करने को कहा, पर मम्मा ने इनकार कर दिया और पापा के साथ वहाँ से निकले। उन्होंने गाड़ी पे हमला करवा दिया। गाड़ी के टायर पे फायरिंग हुई। गाड़ी अनबैलेंस हुई और पापा बहुत संभालने के बाद भी गाड़ी को ना संभाल सके। मम्मा ने मुझे पीछे से अपनी तरफ आगे खींचना चाहा, लेकिन इतनी देर में गाड़ी सीधी दरख्त के साथ चल गई। जब एक्सीडेंट हुआ तब मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा और पलक तक ना झपकी। मेरी गलती थी। 12 साल का था उस वक्त मैं सिर्फ, और कांच सारा मेरी आंखों में आ चुका। और उस वक्त मुझे किसी ने गाड़ी से उठा के बाहर फेंका था। मैंने बेहोश होने से पहले अपने मामू की आवाज़ सुनी थी। वो आज भी पूरी तरह हथौड़े की तरह बरस रही है। मार दो उन दोनों को। बालाज की आंखें आंसू से तर थीं और परी भी नम आंखों से उसे देख रही थी। बालाज अपनी जगह से खड़ा हुआ। चचा जान ने मुझे सबसे छुपा दिया। उन्होंने मेरा इलाज करवाया। तब मेरी आंखों की रोशनी मांद पड़ गई थी। ये वक्ती थी, पर चचा जान ने सब जगह यह मशहूर कर दिया कि बालाज अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है, ताकि मामू जैसे भेड़ियों से महफूज रह सकूं। फिर मैंने अंधेपन का नाटक शुरू कर दिया और खुद को अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए तैयार किया। बहुत तकलीफ दे लम्हा था वो मेरे लिए, जब इन्हीं हाथों से अपने छोटे मामू को जहन्नम वासिल किया। वो अपने दोनों हाथों को देखता गर्व से बोला, आप ने कत्ल कर दिया। वो घबरा के अपनी जगह से उठी और इसी काबिल थे। इस्लाम में भी खून का बदला खून है। मेरी माँ और बाबा की मौत का बदला उनके खून से ही पूरा हो सकता था। वो इंतहाई ऊंचे लहजे में बोला, फिर भी कत्ल है बालाज। आप किसी से यूं बदला नहीं ले सकते कि अपने खून से रंग दें। वो उसके पास आते धीरे से बोली, पर मैं उसे मार चुका हूँ और अब सिर्फ सांस रुकना बाकी है। वो राते हुए बोला। उसके दिमाग की नसें फटने के करीब हुई थी। वो उसे कातिल कह रही थी, जबकि उसके माँ बाप का कत्ल करके वो फिरौन आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा था। अब जब बदला लेने का वक्त था तो वो क्या उसे छोड़ देता? पिछले 2 साल से
वो अपने मामू अशरफ को तह खाने में कैद किए हुए था। हर तरह की अजियत उसे दे रहा था, लेकिन नहीं दे रहा था तो मौत नहीं दे रहा था। और अब उसके मामू अकबर, वो भी तहखाने में बंद थे। दोनों भाइयों ने 16 साल पहले जो खून का खेल खेला था, बालाज सूद समेत वापस लौटा रहा था। परी एकदम उसके हाथ थाम गई, क्योंकि गुस्सा से उसका सांस फूलने लगा था और उसकी शब्द रगें उभर के एक अजीब सी डर परी को दे रही थी। परी, जाओ यहाँ से, मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, कहीं आपको कुछ न कर दूँ। वो गहरे सांस भरता अपनी आंखें मीचता मज़ब से बोला। इसी पल वो अपने कदमों से ऊपर उठती उसके होंठों पे अपना तचना लब रख गई। उस एक पल को बालाज को लगा आग पे पानी पड़ गया हो। वो कुछ भी मूव नहीं कर रही थी, लेकिन अपने होंठों को भी नहीं हटा रही थी कि एक ठंडी फुहार की तरह वो उस पर बरसने लगी। अगले ही पल वो उसके होंठों पे दबाव बढ़ाने लगी। बालाज के दिल में धड़कन मामूली सी हटी थी। बेख्तियार हाथ उसकी कमर के गिर्द लिपटने लगे थे। उसके नाजुक लबों को वो यकदम अपने होंठों की सख्त गिरफ्त में ले गया था कि परी सिसकी भरते पीछे हटने लगी, लेकिन इस बार बालाज की सख्त गिरफ्त से खुद को छुड़ा न पाई और उसकी सांसों को अपनी सांसों में घुलता महसूस करने लगी। वह बुरी तरह बहक रहा था। उसके सर के पीछे हाथ रखे वो उसकी सांसों को अपनी सांसों से बुरी तरह उलझा गया। परी, मत उलझाओ मैं खुद को मेरे साथ, मैं आग हूँ, आप सहन नहीं पाएंगी। वो उसकी नाक के साथ नाक रिब किया आंखें में से बोला, आप खुद को कंट्रोल कर लें प्लीज़, मुझे आपके गुस्से से डर लगता है। वो उसके सीने से लगने लगी। मेरे लहजे में बोली, खुद को सौंप दे मुझे परी, सुकून आ जाएगा मुझे। बरसों से इस आग में जल रहा हूँ, कोई बहुत अपना चाहिए जिसके सीने से लगकर अपना दर्द बांट सकूं, अपने दिल की हर बात कह सकूं। वो उसे पल पल को पिघलाता जा रहा था और वह पिघलती जा रही थी। आप पहले मुस्कुराएं। इसके गुस्सा से सख्त खाइफ हुई थी, इसलिए शर्त रख गई। बालाज उसे देखे चले जा रहा था। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। छोटी सी हॉट सी गुड़िया उसके सरापे को गहरी निगाहों से देखता जरा सा मुस्काया। इस पल परी को भी उसकी मुस्कान एक सुकून अता कर गई। वो एकदम उसे बिस्तर पे हल्का सा पुश कर गया तो वह सीधा पीछे जा गिरी, उसके दिल फरेब नशेब अफराज को निहारता। वो अपनी हुडी उतार के परे फेंक गया। उसकी बेबाक निगाहों को देखते परी जरा शीशमगी की हालत में पीछे हटी थी। एक धीमी मुस्कान के साथ उसके चेहरे के बहुत करीब आ गया। परी ने घबराए हुए अंदाज में उसकी आंखों पे हाथ जमाए। क्यों जुल्म कर रही हैं? जानम जान लेने का इरादा है क्या? वो उसके चेहरे पे झुकता जा बचा अपने लब रखता उसे भी अपने साथ गुम करता चला गया। लाइट्स डिम किए वो उस पे मुकम्मल तौर पर चाहता सारे पर्दे गिराता चला गया। परी ने भी दिल की खुशी से अपना आप अपने महरम को सौंप दिया। बज़ाहिर सब कुछ ठीक हो गया। बालाज ने परी की बात मानते अपने मामू अशरफ और कबीर को पुलिस के हवाले कर दिया था और सभी पे ये राज अफशा हो गया कि बालाज देख सकता है। इस बार तो नवेरा का जी चाहा सब कुछ तहस नहस कर दे। वो करने का इरादा भी रखती थी, लेकिन ऐसे ही में वो हनीमून दुबई जाने का प्लान बना रहे थे, जिसे नवेरा ने बर्बाद कर दिया। उस वक्त सभी बड़े हालनुमा कमरे में मौजूद थे। आंसू थे जो कि नवेरा की आंखों से बहते जा रहे थे। सादिया बेगम करख्त निगाहों से बेटी को देख रही थी। वो चाह के भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। जो खेल वो खेल चुकी थी, अब कुछ भी कहना सुनना बेकार था। मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। अचानक से बालाज की आवाज़ ने वहाँ मौजूद सुकूत को तोड़ा। उस पल परीशा बुरी तरह डगमगा गई। पास खड़ी शादिया बेगम ने उसे फ़ौरन सहारा दिया। बालाज, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन मेरी बेटी की इज़्ज़त दांव पे लगी है और तुम ही हो जो अब इस दाग को मिटा सकते हो। चचा अल्ताफ़ ने बालाज के आगे हाथ जोड़े थे। वो उनके हाथ थाम ना सका। वो कुछ कहने वाला था जब सामने पत्थर बनी परी को देखा। बालाज का चेहरा हद दर्जे सपाट हुआ। वो रो नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी गजाली आंखें पलकों समेत लरज रही थी। निकाह का बंदोबस्त कर दें, मैं आ जाऊँगा, वो अपनी कहता परी की जानिब बढ़ा।
और उसकी कलाई से थामा। परी ने अपनी कलाई न छुड़ाई बल्कि उसके साथ खींचती चली गई। ये मेरी बेटी के साथ सख्त ज्यादती है ज़ुबैर साहब। अगर इसे कुछ भी हुआ मैं आप में से किसी को माफ़ नहीं करूँगा। शाजिया बेगम रोते हुए वहाँ से अंदर चली गई, जबकि नवेरा के चेहरे पे एक सुकून था। फाइनली आज वो कामयाब हो गई थी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभालते वो बहुत खामोशी से ड्राइव कर रहा था, जबकि परी बिल्कुल खामोश थी और उसकी मुसलसल खामोशी बालाज को अंदर ही अंदर मार रही थी। एक अचनती निगाह उस पर डाली। परी, जो दिल में है बोल दें। बिल आखिर वही बोला, मुझे तलाक दे दें। वो बोली तो क्या बोली? बालाज की रूह ही खींच ली। गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ से छूटा और वो अनबैलेंस हुई तो वो फ़ौरन एक तरफ को पार्क करता गाड़ी की ब्रेक लगा गया, उसके सांस गहरे हुए। आप चाहती हैं बालाज सुल्तान मर जाए? वो सामने विंड स्क्रीन से देखता बहुत धीरे से सख्त लहजे में बोला, बालाज मैं आपको नहीं बांट सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर रही हूँ। यही सब सोच सोच के आप और नवेरा मेरा सांस रुक रहा है। ये सांस गला घोंट के रोक दें या मुझे अलग कर दें, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। वो भी गहरा सांस भर गई। तो आप मुझ पे शक कर रही हैं? मुझ पे यकीन नहीं आपको? वो दुख से बोला। आपने क्यों हामी भरी? क्यों करेंगे आप उससे निकाह? वो झूठी है। पहले दिन से आप पे उसकी नज़र है। जानता हूँ सब। अब वक्त आ गया है कि उसकी सारी चालों का जवाब एक ही बार में दे दूँ। मुझे बस आपका साथ चाहिए। वो उसके आगे अपनी हथेली फैला गया। आप मुझसे वादा करें कि आप सिर्फ परी के हैं। वो आंसू पोंछते बोली, दिल से सिर्फ आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। आपको रुखसत करवा के लाया हूँ, जब से सिर्फ आपका हूँ, हमेशा की तरह। वो उसे उससे करीब करता उसके माथे के साथ माथा जोड़ गया। जस्ट ट्रस्ट मी। बालाज सुल्तान की सांसें अपनी परी के होने से चलती हैं मेरी लाइफ में। परी सिर्फ आप हैं, मेरी अपनी। अगर आइंदा मुझे छोड़ने की बात की तो मैं खुद को और आप दोनों को मार दूंगा। वो जुनूनी सा हुआ। परी इसका यही जुनून तो चाहती थी, कुछ हद तक ही सही। वो मुतमिन हो गई थी। नवेरा ने बहुत सोच समझ के बालाज पे इल्ज़ाम लगाया कि वो उसके कमरे में आता और उसके साथ ज़्यादती ज़बरदस्ती करने लगा, और उस पल वो बालाज को खुद पे गिरा भी चुकी थी। उसने अपने कपड़े भी फाड़ दिए ताकि झूठ में हकीकत का रंग भर जाए। बालाज समेत सब घर वाले जानते थे ये झूठ है, लेकिन नवेरा ने अपनी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। मजबूरन चचा जान ने बालाज के आगे हाथ जोड़कर एक दिल चाहा कि वो अपनी बेटी को जान से मार दें, लेकिन बड़े भाई ने रोक दिया। वो कुछ भी ऐसा नहीं होने दे सकते थे। और फिर वो दोनों बाद के निकाह के लिए सब सुल्तान हाउस जमा हो गए थे। नवेरा दुल्हन बनी बैठी थी। जब दरवाज़ा खोल के परी अंदर दाखिल हुई, उसे देखकर नवेरा ने एक तंज भरी मुस्कान उसकी तरफ उछाली और अपना लहंगा संभालती उसकी जानिब बढ़ी। फाइनली तुम्हारा शौहर मेरा बन रहा है। देखना कैसे उसे सिर्फ अपना बना लूँगी। अपने हुस्न और मोहब्बत के जाल में ऐसा उलझाऊँगी कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। वो परी की चैलेंज कर रही थी, जबकि परी जवाबन मुस्कुरा दी। सेज मैंने अपने हाथों से बनाई है। उम्मीद कर सकती हूँ कि आप इस सेज तक सही सलामत पहुँच जाओ। परी ज़रा सा झुक के कहती, आंखों में अजीब सी चमक लिए हुए थी। उसकी बात पे नवेरा सन्नाटों में आई थी। हैरत की बात है, अपनी सौतन के लिए सेज सजा के आई हो। भाई बहुत बड़े दिल वाली हो। नवेरा ने तमस्खुराना अंदाज में सर झटका तो परी भी मुस्कुरा दी। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा किसकी सेज सजी है। परी के अल्फाज भी मुंह में ही थे कि ज़ुबैर साहब, अल्ताफ़ साहब, मौलवी साहब के साथ अंदर दाखिल हुए। नवेरा ने झट से घूंघट ओढ़ा। चेहरे पे एक दिलफरेब मुस्कान ने अहाता किया। मेरा ज़ुबैर बिन्ते अल्ताफ़ सुल्तान, आपका निकाह फ़ियाज़ हसन वल्द मोहम्मद हसन से 2000 रुपये सिक्का राजुल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नवेरा के तो पैरों तले से ज़मीन खिसकी। झट घूंघट से उलट के बाप को देखा, जिनके हाथ में पिस्तौल थी। जैसे वो बोलकर कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनकी आंखें और उनका चेहरा सब बयान कर रहा था कि इनकार की सूरत में सीधा गोली खानी पड़ेगी।
मौलवी साहब ने फिर से पूछा। वो लब भैंच गई, उसे समझ ना आया क्या जवाब दे। तभी उसके बाप ने गन को लॉक किया। कबूल है, नवेरा ने घबरा के फौरन कबूल है कहा। तो परी के दिल को सुकून नसीब हुआ। उसने गहरा सांस खारिज करते हुए एक अफसोस भरी निगाह नवेरा पे डाली और बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में निकाह की सुन्नत मुकम्मल हुई तो घर आए मेहमानों को खाना सर्व किया जाने लगा। नवेरा ने कमरे के अंदर अच्छा खासा शोर मचाया, जिस पे सादिया बेगम से उसे एक थप्पड़ भी खाना पड़ा। परी को अपने निकाह वाला दिन याद आ गया। वो नम आंखों से दूर खड़ी अपना वक्त सोचती मुस्कुराई। क्या हुआ, अकेले अकेले मेरी बीवी मुस्कुरा रही है। वो सबसे अलग थलग करती। अचानक उसे बालाज सुल्तान की मौजूदगी महसूस करते चौंकी और मुस्कुरा के देखा। कुछ नहीं, यूँ लगता है निकाह वाले दिन थप्पड़ खाना हमारा खानदानी वतीरा बन गया है। मैंने कभी खाया था और आज नवेरा ने भी खाया है। परी, यकीन जाने मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता आप साथ जोर ज़बरदस्ती की गई है तो मैं कभी भी। अरे क्या बोल रहे हैं, अब बीवी हूँ आपकी। मैंने तो आपको तस्वीर दे के ओके कर दिया था, लेकिन जब नवेरा ने मुझ पे आपकी भी नाई ना होने का भांडा कुछ इस अंदाज में फोड़ा, मैं आपे से बाहर होते इनकार कर गई। यकीन जाने निकाह के बाद आपके संग रुखसत होते ही दिल से आपको अपना लिया था। तभी बात बात पे ताना देती थी। वो खफगी से बोला, आप कौन सा कम थे, देखने की सलाहियत रखते हुए भी मुझे उल्लू बनाए रहे। ये तो मुझे उस दिन शक गुजरा तो आप पकड़े गए, वरना आप तो अब भी न पकड़े जाते। वो कमर पे हाथ रखे लड़ाका औरतों की तरह बोली थी। बालाज बहुत धीमी सी मुस्कान दे गया। वाकई मान गए, शादी के 6 माह बाद बीवी ने मुझे पकड़ लिया। आपकी जगह मैं होता तो एक दिन में पकड़ लेता। उसके गिर्द बाहें फैलाते बोला, वेरी फनी। वो भी मुस्कुरा गई। बीवी मिल लें सबसे, फिर निकलते हैं। पता है आज रात की फ़्लाइट है। वो दोनों दुबई जा रहे थे अपने हनीमून के लिए और सुल्तान हवेली में सब जानते थे सिवाय नवेरा के। जो उसने हरकत की थी उसके बाद कोई भी उसे मुंह नहीं लगा रहा था। हम फ़्लाइट रात को, तो अभी क्यों मिलना सबसे, शाम तक रुकते हैं यहीं, शादी वाला घर है। वो मुंह बनाते बोली। बीवी, शादी वाला घर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और अपने बंदे की ज़रूरत का ख्याल रखें। रात की फ़्लाइट का मतलब है कि अपने स्पेशल मोमेंट्स दिन में एंजॉय कर लें। अब जल्द से आ जाएं, सबसे मिलके फिर निकलते हैं। आपके लिए स्पेशल एक खूबसूरत नाइटी ऑर्डर की है, आज मुझे वो दिन में पहन के। शी, बालाज क्या हो गया है, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। वो बुरी तरह ब्लश करने लगी थी, जबकि बालाज का कहका बरजस्ता था। सामने ही नवेरा की रुखसती हो रही थी। उसने जालीदार घूंघट से कहर बरसाती निगाहों से उन दोनों को देखा और अपने दूल्हे के हमरा गेट की जानिब बढ़ गई। चलो, इसका घर भी बसा, अब साजिशें कम करेगी। नामुमकिन, बालाज ने यकीन से कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस घर में इस मैडम की शादी हुई है वहाँ इनकी 3 नंदें और जेठानियाँ हैं। मतलब समझो, अब साजिशें का एक नया ज़ख़ीरा निकलेगा, खूब गुजरेगी। जब मिल बैठेंगे साजिशी लोग। बालाज की बात पे परी की आंखें हैरत से फैल गईं। ये किस जन्म का बदला लिया है। उफ, इतना बड़ा खानदान, नवेरा तो पागल हो जाएगी। अच्छी बात है ना, अपने घर में लगी रहे, हमारी जान छूटी रहेगी। इसकी बात पे परी ने उसे एक मुक्का जड़ दिया। पूरी चीज़ हैं आप बीवी, हाथ हौला रखो। यार, वो मसनूई अंदाज में उसे देखते बोला। अपनी बार कौन सा हाथ हौला रखते हो जो मुझे बोल रहे हो। वो भी मैंने खेजी से बोलती बालाज को हैरान कर गई। चले आज फिर बताता हूँ आपको हाथ कैसे हौला नहीं रखते। वो एक आंख विंक करता मैंने खेजी से बोला तो परी मुस्कुराते अंदर की तरफ बढ़ गई। यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानियाँ। बालाज इतने अरसा से नफरत की आग में जीता रहा, लेकिन प्रीशा की मोहब्बत पाके उसके अंदर नेगेटिविटी ख़त्म होती चली गई। ज़रूरी नहीं नफ़रत का जवाब नफ़रत से ही दिया जाए। कीचड़ में पत्थर फेंकने से हम खुद भी गंदे होते हैं। परी जैसी मासूम दिल लड़की ही बालाज को डिज़र्व करती थी, जो उसे अंधेरों की दुनिया से बाहर करती। और नवेरा क्या करने जा रही है ससुराल, उसकी नेचर के मुताबिक समझ जाओ। बाकी आप सब नावल को नावल समझ के पढ़ा करें। हमारा इरादा किसी की दिल आज़ारी करना नहीं। आप तारीफ़ करें या तनकीद, हमारे अल्फाज का चुनाव सोच समझ के करें। हदीस शरीफ में है, तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। तो प्यारे रीडर्स, अखलाक के दायरे में रह के